Hello, Muzammil. Am I audible? Hello, sir. Yes, sir. Hello, viewers. I, Muhammad Abdul Habib, welcome you all to our application AIMS tutorial. In this video, we'll be discussing Chapter 5, Admission of a Partner. Here is the question number 5. Mr. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under, and the page number is 241. Here is the question. Following is their balance sheet. We are provided with some liabilities and some assets, and here is the additional information provided. They agreed to take Mr. Z into partnership with effect from 1st April 2020 on following terms. Mr. Z brings 40,000 towards goodwill and 60,000 as capital. So who are partners? X and Y. X and Y. Their profit sharing ratio is 4:1. 4:1. Who is the new partner admitted into the business? Z. Z. तो पहले से पार्टनर्स X और Y थे, अब नए पार्टनर को ले रहे बिजनेस में जिसका नाम Z है. तो whenever a new partner is being admitted into the business, जब कभी नए पार्टनर बिजनेस में आते, अपने साथ क्या क्या लेके आना? Capital or goodwill. Capital or goodwill. Whenever a new partner is being admitted into the business, he pays amount towards capital and towards goodwill. So what is the amount of capital that is being contributed by Mr. Z? 60,000. 60,000. What is the amount of goodwill? 40,000. 40,000. We are also provided with some other information, with some additional information that the assets are revalued as under 50,000. यहाँ पे फर्नीचर की पहले से वैल्यू क्या दी हुई है? It is given as 40,000. 40,000. पहले जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो 40,000 थी, अब उसको 50,000 करना है. नेक्स्ट, स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 78,000. पहले से स्टॉक की वैल्यू क्या है? 80,000. इट इज 80,000. 80,000 जो स्टॉक की वैल्यू थी उसको 78 करना है. नेक्स्ट, वी आर आल्सो गिवन एन एडजस्टमेंट ऑन डेप्टार्स 58,000. तो पहले से जो डेप्टार्स की वैल्यू दी है वो क्या है? 60,000. The value of debtors was 60,000. No, it has to be made as 58,000. The goodwill will be retained in the business. इसका मतलब क्या? गुडविल का पैसा लाते कौन? नया पार्टनर Z. Partner, new partner ले लेके आते. Once the amount of goodwill is brought by new partner, it should be distributed among Old partners. old partners. तो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आते और वो पैसा क्या करते? पुराने पार्टनर्स में बांट देते. After distribution of goodwill among old partners are retaining the amount of goodwill in the business. तो नया बंदा गुडविल का पैसा लाने के बाद जब वो पैसा पुराने पार्टनर्स में बटने के बाद वो लोग वो पैसा बिजनेस में वैसे ही रख रहे, उसको हम गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस बोलते हैं. So this was our question. So prepare necessary ledger accounts and prepare balance sheet of new firm. तो अपने को necessary ledger accounts बनाना है और नए फर्म की बैलेंस शीट बनाना है. What are the ledger accounts that we prepare in partnership? कौन से अकाउंट्स बनाते हैं हम? Revaluation account. Revaluation account, bank account, goodwill account, partners capital account, new balance sheet of X, Y, and Z as on 1st April 2020. The format for revaluation account, bank account, and goodwill account is particulars amount, rupees, particulars amount, rupees, particulars amount, rupees. And the format for partners capital account is particulars and the name of the partners, particulars XYZ, followed by rupees. And the format for new balance sheet is liabilities amount, assets amount, rupees. The rules for revaluation are: decrease in asset should be recorded on debit side, increase in asset should be recorded on credit side. Revaluation के rules क्या है? Decrease in asset debit side, increase in asset credit side. असेट की वैल्यू अगर कम हो रही तो आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है, असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है. एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा. तो सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट है, द एसेट्स आर रिवैल्यूड एज फॉलोज बोल के, उसमें पहला एडजस्टमेंट है फर्नीचर पे है. फर्नीचर इज वैल्यूड एट 50,000. सो पहले से फर्नीचर की वैल्यू क्या थी? 40,000. 40,000 को क्या करना है? 50,000 करना है. सो द वैल्यू ऑफ असेट इज बीन इंक्रीज्ड और इट इज बीन डिक्रीज्ड? Increased. It is being increased.
So increase in asset will be recorded on credit side of revaluation. इसकी वैल्यू बढ़ रही furniture, फर्नीचर, सो इट विल बी क्रेडिटेड एज बाय फर्नीचर अकाउंट. पहले 40,000 थी, अब वो 50,000 हो रही. सो फ्रॉम 40,000 इट इज टू बी ब्रॉट अप टू 50,000. तो वैल्यू बढ़ रही, कितना बढ़ रही? 10,000, 10,000. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपीज. 10,000 कैसा है? फर्नीचर की वैल्यू 40,000 थी, अब 50,000 हो गई. नो अगेन इट विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट एज ऑन असेट साइड. फर्स्ट इट विल बी शोन एज फर्नीचर. पहले क्या थी इसकी वैल्यू? 40,000, 40,000. अब इसमें पैसे बढ़ रहे कम हो रहे? इट इज बीन but और इट इज बीन डिक्रीज increase इंक्रीज. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज प्लस अप्रिसिएशन. कितना बढ़ रहे? 10,000, 10,000. तो यहाँ पे अप्रिसिएशन की स्पेलिंग पूरी लिखेंगे आप, APPRECIATION. तो यहाँ पे 10,000 बढ़ रहे. तो पहले फर्नीचर की वैल्यू 40,000 थी, अब 10,000 बढ़ गए, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 50,000 हो गई. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाज गिवन ऑन स्टॉक. द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज 80,000, whereas in adjustment it is given as 78,000. तो 80,000 के स्टॉक को 78 करना है, तो वैल्यू बढ़ रही कम हो रही? कम हो रही, कम हो रही. कितना कम हो रही? 2,000 रुपये, 2,000 कम हो रही. सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. किसकी वैल्यू कम हो रही? stock, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही. तो इधर यहाँ पे लिखेंगे हम टू स्टॉक अकाउंट. पहले क्या थी इसकी वैल्यू? 80,000 थी, जो अब 78,000 करना है. सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,000. यहाँ पे वापस बैलेंस शीट में आके इसको बताएंगे कैसा. स्टॉक, पहले स्टॉक कितने का था? 80,000, 80,000. अब इसकी वैल्यू बढ़ रही कम हो रही? कम हो रही, Earlier the value of furniture has increased, so it was recorded as plus appreciation. Now the value of stock is been decreased, so it will be recorded as minus depreciation. यहाँ पे भी आपको depreciation की पूरी spelling लिखना है, DEPRECIATION, depreciation. कितना पैसा कम हो रहा? 2,000, 2,000. So 80,000 minus 2,000, it becomes 78,000. The next adjustment is given on debtors. The value of debtors on asset side of the balance sheet is given as 60,000, whereas it is to be revalued as 58,000. डेप्टार्स की वैल्यू 60,000 जो है उसको 58 करना है. डेप्टार्स किसको बोलते हैं? जिन लोगों से बिजनेस को पैसे आना है. द पर्सन्स फ्रॉम हुम द बिजनेस हैज टू रिसीव द अमाउंट, दे आर कॉल्ड एज डेप्टार्स. 60,000 जो पैसे आना था, अब वो 58,000 ही हो रहे, मतलब 2,000 रुपए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डाउट पे है. तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन debit side, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. तो डेप्टार्स के लिए हम क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट. डेप्टार्स की वैल्यू पहले क्या थी? 60,000 थी, अब उसको 58 करना है. कितने पैसे कम हो रहे? 2,000, 2,000. तो डेबिट साइड लिखेंगे 2,000. अब उसको नई बैलेंस शीट में कैसा लिखेंगे? पहले से डेप्टार्स कितना था? 60,000 था, इसमें से कितने पैसे कम हो रहे? 2,000 कम हो रहे. इट विल बी रिकॉर्डेड एज माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. ये भी आपको पूरा लिखना है, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. अगर एक लाइन बस नहीं हो रही तो नेक्स्ट लाइन में, पहले लाइन में प्रोविजन लिख के नेक्स्ट लाइन में फॉर बैड डेट्स लिखिए. कितने पैसे कम हो रहे? 2,000 कम हो रहे. सो 60 minus 2 it becomes 58,000. Am I clear? yes sir, So now the adjustments given on assets have been completed. अब रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे हम. तो रिवैल्यूएशन के रूल्स क्या है? डिक्रीज इन असेट should be recorded on debit side of revaluation, increase in asset should be recorded on credit side of revaluation account. Whereas increase in liability will be recorded on debit side of revaluation account and decrease in liability will be recorded on credit side of revaluation account. बट ये प्रॉब्लम है, अपने जो भी एडजस्टमेंट्स थे वो तीनों के तीनों एडजस्टमेंट सिर्फ एसेट से रिलेटेड थे. तो नाउ विल बी बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 4,000, 4,000, whereas the total on credit side of revaluation account is 10,000, 10,000. तो कौन सा टोटल ज्यादा है? 10,000, On both the sides will be reading the total as 10,000, 10,000. Now subtracting 4,000 from 10,000. 10,000 में से 4,000 निकाल दीजिए, क्या पैसे बच रहे? 6,000, 6,000 रुपए. So subtracting 4,000 from 10,000, we are left out with a profit amount of 6,000 rupees. ये 6,000 जो प्रॉफिट है वो x का है, y का है? दोनों का है, x और y का. So this profit will be distributed among x and y in ratio 4:1, 4:1. 4 और 1 क्या होते हैं? 4 plus 1 it becomes 5, 5. So whatever the amount is to be distributed among partners, it should be distributed into 5 shares, of which 4 shares belongs to x and 1 share belong to y. तो अब आप उसको यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू x कैपिटल अकाउंट. कितना प्रॉफिट आया था? 6,000, 6,000. So it will be calculated as 6,000 into 4/5. So it works out to be 4,800. और किसको 800, थे? y,
y, again it will be recorded as y capital account. फिर कैलकुलेशन क्या आता है इसका? 1200. 6000 इंटू, कैलकुलेशन क्या आता? 6000 इंटू 1/5, 4/5 1 by तो 50, तो 1/5 y का है. अब ये बंदे को क्या मिलेंगे? 1200 रुपए मिलेंगे. 1200. हमें क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट अकाउंट. नेक्स्ट अकाउंट क्या है अपना? बैंक अकाउंट है. The format for which is particulars amount rupees, particulars amount rupees. So bank, it is an asset and all assets have debit balance. Whereas capital, it is a liability and all liabilities have credit balance. तो बैंक ये अपने लिए asset है, तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वही कैपिटल जो है ये हमेशा लायबिलिटी रहेंगी, तो ये हमेशा बाई ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो इसको अपन लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो व्हेनेवर वी स्टार्ट बैंक अकाउंट, विल बी राइटिंग इट एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज बैंक it is an asset and all assets have debit balance, so it will be recorded as two balance brought down. Whereas capital, it is a liability and all liabilities have credit balance, so it will be recorded as by balance brought down. तो अब ये जो बैंक का अमाउंट है, ये अपने को क्वेश्चन में एसेट्स की तरफ कैश या बैंक के नाम पे मिलता है. either it will be given in the name of cash or it will be given in the name of bank. तो अब असेट्स की तरफ देख के बोलिए बैंक का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 50,000. 50,000. so it will be recorded as two balance brought down 50,000. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल का जो अमाउंट है वो लायबिलिटी साइड मिलेगा आपको. लायबिलिटीज में चेक करके बोलिए आप. एक्स कैपिटल 50,000, वाई कैपिटल 1,30,000 लिखा हुआ है. जी हाँ सर. सो एक्स 50,000, वाई 1,30,000. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या? ये जो 50,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है व्हेन द न्यू पार्टनर इज बीन एडमिटेड इनटू द बिजनेस, ओल्ड पार्टनर्स हैव ए बैंक बैलेंस ऑफ 50,000 विद देम. नया पार्टनर जिस दिन बिजनेस में आ रहा, उस दिन पुराने पार्टनर्स के पास 50,000 पहले से रखे हुए हैं. अब ये 50,000 और 1,30,000 का क्या मतलब आता? जब एक्स और वाई बिजनेस शुरू करे थे, व्हेन एक्स एंड वाई हैज स्टार्टेड द बिजनेस, एक्स हैज इन्वेस्टेड 50,000 whereas वाई हैज इन्वेस्टेड 1,30,000. अब नया पार्टनर बिजनेस में आने से पहले पुराने पार्टनर्स के पास कितने पैसे हैं? 50,000. 50,000 है. अब नए पार्टनर कौन आ रहे बिजनेस में? Z. Z. So जब कभी भी कोई नए पार्टनर बिजनेस में आते हैं, whenever a new partner is being admitted into the business, he should pay for Capital and goodwill. तो यहाँ पे Z कैपिटल कितना लेके आ रहे? 60,000. 60,000. सो बैंक कैश या बैंक है, पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना. Credit. जब नए पार्टनर बिजनेस में आ रहे तो अपने साथ पैसे ला रहे या लेके जा रहे? ला रहे. ला रहे. तो यहाँ पे पैसा आ रहा, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. कौन लेके आ रहे पैसा? Z. Z. कौन से पैसे ला रहे पहले? Capital. Z capital. Will be recorded as to Z capital account. So here it will be recorded as to Z capital account. कितने पैसे ला रहे? 60,000. और कौन से पैसे लेके आ रहे? Goodwill. गुडविल. सो टू गुडविल अकाउंट, उसको यहाँ पे लिखेंगे हम. टू गुडविल अकाउंट कितने ला रहे? 40,000 लेके आ रहे. अब इसका टोटल करिए. जब नया पार्टनर बिजनेस में आने से पहले ये लोगों के पास कितना पैसा था? 50,000 था. 50. अब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के 60,000 लेके आया, तो 1,10,000 हो गए, और 40,000 गुडविल के लेके आए तो 1,50,000 हो गए. सो द टोटल ऑन डेबिट साइड विल बी 1,50,000. सो हियर द टोटल विल बी 1,50,000. द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 0. कुछ 1,50,000. कुछ भी नहीं है, तो इस तरफ टोटल 1,50,000 लिखेंगे. नाउ इट विल बी बैलेंस्ड एज Carried on. बाय बैलेंस कैरी डाउन. तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 1,50,000. 1,50,000 लिखने के बाद इधर लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000. द सेम विल बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000. और कंटिन्यूइंग विद द प्रॉब्लम. अब बैंक के अकाउंट में हम Z का नाम लिखे, तो Z के अकाउंट में बैंक का नाम लिख. बैंक का नाम लिखेंगे. यहाँ पे अपने को सिंपल पॉइंट क्या याद रखना है? सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम. दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिख. अच्छे के अकाउंट में बुरे का नाम लिखे, बुरे के अकाउंट में अच्छे का नाम लिख. बैंक के अकाउंट में Z कैपिटल का नाम लिखे, तो Z कैपिटल के अकाउंट में बैंक का नाम लिख. लिखेंगे. यहाँ डेबिट में लिखे तो इस तरफ क्रेडिट में. क्रेडिट में लिखेंगे. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाय बैंक अकाउंट एंड इन Z कैपिटल अकाउंट विल बी राइटिंग इट एज 60,000. सो एज वी हैव रिकॉर्डेड द नेम ऑफ Z कैपिटल इन बैंक अकाउंट, now in Z capital account we'll be writing the name of bank
here it was recorded on debit side, here it will be recorded on credit side. उसी तरह हम बैंक के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे थे, तो अब गुडविल के अकाउंट में बैंक का नाम लिख, बैंक का नाम लिखेंगे. उधर डेबिट में लिखे थे, इधर क्रेडिट में, इधर क्रेडिट में लिखेंगे. क्या बोल के लिखेंगे भाई? बैंक अकाउंट अमाउंट क्या आएगा इसका? 40,000. 60 अब नया पार्टनर अपने साथ जो पैसे लेके आएगा वो कौन से पैसे रहेंगे? कैपिटल और गुडविल. कैपिटल और गुडविल. कैपिटल का पैसा क्या करें आप? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए. गुडविल का पैसा क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे. पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे. कौन है पुराने पार्टनर्स? एक्स और वाई. एक्स और वाई. सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स एंड वाई एज टू एक्स कैपिटल अकाउंट. कितने पैसे बांटना है? 40,000. कौन से रेशियो में बांटना है? 4:1. 4:1. So the calculation will be 40,000 into 4/5. So 40,000 when divided into 5 shares, the value of each share works out to be 8,000. 40,000 को 5 से डिवाइड करिए आप, 5 8 40. तो 8,000 का एक हिस्सा है. एक्स के कितने हिस्से हैं? 4. 4 है. So he'll be getting 32,000. फिर उसी तरह बाकी के पैसे किस में बांटना है? वाई में बांटना है. So it will be regarded as to Y capital account. Calculation will be 40,000 into 1/5. एक हिस्सा 8,000 का है. So the total on debit side of goodwill account and the total on credit side of goodwill account will be balanced as 40,000, 40,000. Am I clear? यस सर. अब सेम पॉइंट अप्लाई करना है. गुडविल के अकाउंट में एक्स और वाई का नाम लिखे, तो एक्स और वाई के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखना, उधर डेबिट में लिखे, इधर क्रेडिट में. इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाई गुडविल अकाउंट. सो एक्स को क्या मिल रहा है? 32,000 मिल रहा है. वाई को क्या मिल रहा? 8,000 मिल रहा. नेक्स्ट उसी तरह रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था 6,000, वो भी हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स एंड वाई इन द रेशियो 4:1. सो एक्स गॉट ए शेयर ऑफ 4,800 whereas वाई गॉट ए शेयर ऑफ 1200. सो जैसा रिवैल्यूएशन के अकाउंट में एक्स और वाई का नाम लिखे, अब एक्स और वाई के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे. उधर डेबिट में लिखे थे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्स विल बी गेटिंग 4,800, वाई विल बी गेटिंग 1,200. एम आई क्लियर? यस सर. फिर दो चीजें ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता. लायबिलिटी साइड चेक करिए आप. जनरल रिजर्व 30,000 है. यस सर. तो ये जो जनरल रिजर्व है पुराने पार्टनर्स मेंटेन करे सो है. सो बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर दीज टू अकाउंट्स जनरल रिजर्व, एक जनरल रिजर्व रहता और एक प्रॉफिट एंड लॉस रहता. उसके बिल्कुल नीचे देखिए लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 है. यस सर. तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में है तो ये पुराने प्रॉफिट्स है. तो ये दो चीजें जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं मिलता क्वेश्चन में. सो वी नीड टू रिमेंबर दिस इन एवरी प्रॉब्लम. तो जनरल रिजर्व्स का पैसा कौन जमा करे? एक्स और वाई जमा करे. तो बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सेट दे नीड टू क्लोज इट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज. तो ये यहाँ पे बांट लेंगे बाय जनरल रिजर्व्स. यहाँ पे आपको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आपको पूरा लिखना है. तो जनरल रिजर्व 30,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे आप? 4:1. 4 + 1 it becomes 5. So 30,000 when divided into 5 shares, the value of each share will be for 6,000. अब ये बंदे के 4 हिस्से, तो ये बंदे को 24,000 मिलेंगे, ये बंदे को 1,000 मिलेंगे. जनरल रिजर्व के बाद और एक चीज कौन सी है जो बांटने की है? प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, वो 10,000 है. 10,000 के 5 हिस्से. तो प्रॉफिट एंड लॉस इफ इट इज गिवन ऑन लायबिलिटी साइड, ये पुराने प्रॉफिट्स है. So as these are old profits, it will be distributed among old partners in their old profit sharing ratio and will be recorded as by profit and loss account. 10,000 when divided into 5 shares, the value of each share will be for 2,000. As X has 4 shares, he'll be getting 8,000, whereas Y has 1 share, he'll be getting 2,000. अभी पूरे अमाउंट्स बांट दिए आप, सिर्फ इसका बैलेंसिंग करना है. तो इसका टोटल करिए आप. 50 + 30 80, 80 + 20 1 lakh, 1 lakh plus 8,000, 1 lakh plus 8,000 plus 2,000 110, 110 plus 8 1,18,000 plus 800, 1,18,800. So the total of X on credit side is 1,18,800. डेबिट साइड X का टोटल क्या है? 1,18,800. डेबिट साइड क्या है? 0. 0 है. So 1,18,800 is more than 0. So on both the sides of X capital we'll be writing the total as 1,18,800, 1,18,800. उसी तरह आप Y का टोटल करिए आप. 1,30,000 plus 8 1,38,000 plus 1 1,39,000 plus 6 1,45,000 plus 2 1,47,000 plus 200 1,47,200. The total on credit side of Y is 1,47,200, whereas the total on debit side of Y capital is 0. दोनों में 1,47,200 ज्यादा है. So on both the sides of Y capital we'll be writing the total as 1,47,200, 1,47,200. अब now we'll be doing the total for Z. The total on credit side of Z capital is 60,000, whereas the total on debit side of Z is 0.
दोनों में 60 ज्यादा है तो दोनों तरफ 60 लिखेंगे। अब इस तरफ इसकी बैलेंसिंग कैसा करेंगे आप? जैसा कैश में डेबिट साइड का टोटल 1,50,000 था, क्रेडिट में कुछ नहीं था तो बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखे। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो क्या करेंगे आप? हियर इट विल बी बैलेंस्ड एज टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन। एक्स के लिए क्या लिखेंगे आप? 1,18,800। वाई के लिए यहाँ पे उसी को ब्रॉट डाउन करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,18,800। वाई के लिए कैरी डाउन क्या आएगा? 1,47,200 which will be brought down here as 1,47,200। जेड के लिए क्या आएगा? 60,000 और यहाँ पे भी आएगा 60,000। हमें क्लियर? Yes, sir. Now we'll be concluding the problem by preparing balance sheet. So here will be the heading new balance sheet of XYZ as on 1st April 2020. The format for which is liabilities amount rupees, assets amount rupees. सबसे पहले हम कैपिटल्स लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैपिटल्स, फिर X, फिर Y। X का अमाउंट कितना है अपने पास? 1,18,800। X जब बिजनेस शुरू करे थे, X के पास कितना पैसा था? 50,000. आज ये बंदे के पास कितना पैसा है? 1,18,800. कैसा? 50,000 जो इन्वेस्टमेंट करे थे वो, he got a share of 32,000 from out of goodwill, he got 2,800 from devaluation profit, he got a share of 24,000 from old general reserves and he also got a old profit share of 8,000। आज वो बंदे के पास 1,18,800 रुपए है। उसी तरह वाई के पास कितने पैसे है? 1,47,200। उसी तरह जेड के पास कितने पैसे है? 60,000। हमें क्लियर? Yes, sir. अब पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चेक करिए आप, जनरल रिजर्व 30,000 है, ये पैसा क्या करे? बांट दिए। बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फिर से इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 है, ये पैसा क्या करे? ये भी बांट दिए। बांट दिए, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर वी हैव क्रेडिटर्स 25,000, इसको कुछ करे? नहीं सर। कुछ नहीं करे तो जैसा है वैसा लिखेंगे। देन अगेन वी हैव बिल्स पेबल 5,000, तो उसको भी जैसा है वैसा लिखेंगे। सो वी आर डन विथ लायबिलिटी साइड। यस सर। अब असेट्स की तरफ आइए। असेट्स में पहला नाम क्या है? फर्नीचर है। यस सर। फर्नीचर 40,000 था, उसमें 10,000 बढ़ाना है तो 40 + 10 इट बिकम्स 50। उसके बाद स्टॉक 80,000 था, 2,000 कम करना था, 2,000 कम कर दे के 78 बता दिए। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल 20,000, उसको कुछ करे? नहीं सर। जैसा है वैसा लिखिए आप, बिल्स रिसीवेबल 20,000। फिर इसके बाद डेप्टार 60,000 था, जिसमें से 2,000 कम करना था तो 60 - 2 58,000 कर दिए। फिर इसके बाद बैंक, तो जो पहले बैंक अमाउंट कितना था इन लोगों के पास? 50,000। आज ये लोगों के पास कितना पैसा है? 1,50,000। 1,50,000, so it will be shown as 1,50,000। Now we'll be doing the total on both the sides, liability side and asset side. The total is 3,56,000, 3,56,000। अपना प्रॉब्लम सही है गलत है वही मालूम हो जाता, बैलेंस शीट का टोटल सेम होता। हमें क्लियर? यस सर। Hope you all have understood the topic. See you all in next video. Thank you. Thank you, Muzamil. थैंक यू सर।